हेलो कुलाले मैडम. हॅलो कुलाले मॅडम. हा डॉक्टर बोला ना. बोला ना डॉक्टर. आहे नमस्कार. आपण मीटिंग चालू करूयात मॅडम. सर मीटिंग चालू करूयात सर. करा सरांकडून ओके. सरांना सांगा अनम्यूट करा. गुजराती सर माइक अनम्यूट करा ना तुमचा. गुजराती सर ऐकायला येत आहे. हा सर येते ऐकायला. हो हो मीटिंग चालू करूयात सर. 34 होय होय. पहले हमारे देश में मिसाइल फ्यूज कंडक्टर बनाना इतना आसान नहीं था. 91 लोक जॉईन झाले. 94 96 100 सर शंभर झालेत आपले. गुड आफ्टरनून एवरीवन. कौन हो तुम? गुड आफ्टरनून. तुम्हें ये फ्यूज कंडक्टर लेके हमारे साथ चलना होगा. तुम्हारे सिक्युरिटी गार्ड्स के साथ आजच्या झूम मीटिंग मध्ये जीपी टू सीपीआर जीपीआर सिरीज मध्ये डॉक्टर मिलिंद खेरडे सर तुमचा टीव्ही चालू आहे बहुतेक. हो 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 सर प्लीज टीव्ही बंद करा. सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे आपला मोबाईल सगळ्यांनी सायलेंट मोडवर ठेवावा. ज्यांचे कॅमेरे चालू असतील त्यांनी कॅमेरा असतील त्यांनी माईक बंद करावे. आपण मीटिंग स्टार्ट करूयात. जीपी टू सुपर जीपी टीव्ही चालू आहे. टीव्ही बंद करा. जीपी टू सुपर जीपी या सिरीज मध्ये सेकंड लेक्चर आपल्या रिस्पेक्टेड गुजराती सरांचं आहे आणि आपण डॉक्टर कुलाली मॅडम प्रेसिडेंट निमा डोंबिवली ब्रांच यांना मी रिक्वेस्ट करतो प्लीज इंट्रोड्यूस अवर टुडे स्पीकर. जस्ट मिनिट मॅम. मॅडम तुमच्याकडनं अनम्यूट करा ना तुम्हाला. ओके सर. केला आता आवाज येता सर? ओके. Thank you, Doctor. First of all, I should say thanks to Nima Mumbai team who gave this great opportunity to me. Now I am going to introduce our today's speaker, a great personality in Ayush fraternity, Vaidya Narendra Narayan Das Gujarati. He born in Burhanpur, it comes in MP. He has passed his BAMS in 1983 from Ayurved Mahavidyalay, Panchavati, Nashik. And he completed his MD in Shalya subject in 1987 from Gujarat University, Jamnagar. He is an exclusive Ayurveda consultant practicing in Namodhan Hospital, Jalgaon. One unique thing I noticed in his biodata is about his research. That is Vaidya Gujarati's syringing method for Rakta Moksha in 1997. He is a founder of member of Sane Guruji Ayurveda, trustee and finance secretary of Matoshri Vruddhashram Shantivan Saukheda, Jalgaon. He is a president of Jalgaon Jilla Vaidya Mandal, Jalgaon, branch of Maharashtra Ayurveda Sammelan, Mumbai. National Academy of Panchakarma and Research branch, Maharashtra. He is an active participation in Ayurveda from 1984 till now in so many conferences, workshops, CMEs, etc. It is a big list and really appreciable. Hello. हॅलो मॅम. निलेश कापडणे सर आहेत त्यांचा टीव्ही चालू आहे. डॉक्टर निलेश कापडणे. प्लीज तुमचा एक तर टीव्ही बंद करा किंवा तुमचा माइक अनम्यूट करा. म्यूट करा. Okay. Can you continue, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. He has an active participation in Ayurveda from 1984 to till now in so many conferences, workshops, CMEs, etc. It is a big list and really appreciable. One more very important thing I want to express here is Vaidya Narendra Gujarati got 3 patents from India.
First one is Gujarati's Auto Enema Apparatus, Basti Yantra. Second one is Gujarati's Dhupan Yantra, Fumigation Apparatus. Third one is Nano Niroha Gel, Gelled Enema, composition process of preparation and method for administering the same. He has got so many awards like Panchakarma Vishak Puraskar in 1993-94. In 1997, late Balashastri Laugankar Panchakarma Puraskar. In 1999, Uttam Vishak Puraskar. In 2009, Uttam Vaidya Puraskar and Excellent Lecture Award in the program of ROTP run by Department of Ayush and Gujarat Ayurveda University. In 2015, 10th AFME Ayurveda Bhushan by Sandu Pharmaceuticals. In 2016, Gujarati Gaurav Puraskar and Lifetime Achievement Award in Ayurveda. In 2017, on September 17th, Ayurveda Jyeshtha Uttam Puraskar, Dhanvantari Award on 17th October by Ayurveda Sanshothan Seva Sangha, Bhusawal, Jalgaon. Above all, he is a very good chess player, and in 1981, he was a vice captain also. His hobbies are to play chess, carom, table tennis, reading, writing, to play Casio, flute, harmonium, even cooking also. Last one, I want to highlight one thing, that is about his innovative article, a therapeutic response to innovative medifumes in acute tonsillitis and lymphadenitis in the monthly National Journal of the Indian Practitioner. So many things are there, but I can't interpret due to lack of time. Now I request Vaidya Narendra Gujarati to deliver the lecture on management of cold, cough, fever with Ayurveda. Sir, please, you can start. Thank you. नमस्कार. नमस्कार. सर्वप्रथम नीमा या संस्थेतर्फे आणि खास करून मुंबईच्या लोकांसाठी आज हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे आणि सब्जेक्ट जो दिला आहे फार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे की जो सब्जेक्ट सध्या कोविड मध्ये देखील उपयोगात येणार आहे असा हा सब्जेक्ट म्हणजे कफ, कोल्ड अँड फीवर. दीज आर द कॉमन सिम्पटम्स सो फार एज द COVID-19 is concerned. And considering all these things, you are going to arrange this workshop, seminar, webinar over the cough, cold and fever so far as the general practice to super general practice. So I must say that right now, if the person are just watching all these things, the person who are the general practitioner, I think I must say that after just hearing this webinar, 100% you will be a consultant. You will not be a super general practitioner, right? So herewith I am going to start my lecture over the cough, cold and the fever in general practice. हे बघा, जनरल प्रॅक्टिस करत असताना सगळ्यांना मुख्यतः प्रॉब्लेम बरेचसे येत असतात, पण सगळ्यांना काय असतं वेबिनार मधून, तर एक गोष्ट हवी असते की डू वी हॅव गनशॉट ट्रीटमेंट सो फार एज द कफ, कोल्ड अँड फीवर इज कन्सर्न. तर मित्रांनो, मी नक्की सांगेल या ठिकाणी की कफ, कोल्ड आणि फीवर यासाठीची गनशॉट ट्रीटमेंट समजण्याच्या अगोदर आपल्याला काय गोष्ट करावी लागेल, तर सगळ्यात महत्वाचं असं आहे की जनरल प्रॅक्टिस मध्ये जनरली 200-300 पेशंट असतात. परंतु इथं आता मला एक विचारणा येते की बा तुम्ही जरा हे हिंदीमध्ये बोललात तर हे सगळ्या लोकांना जास्त सोयीचं होईल. तर मी दोन्ही तिन्ही भाषा या ठिकाणी यूज करणार आहे. तर सगळ्यात प्रथम जे 200-300 पेशंट जनरल प्रॅक्टिशनर हे दररोज बघत असतात, मग याच्यामध्ये काय आपल्याला कफ, कोल्ड आणि फीवर याच्यासाठी आपल्याला नेमका काय काय करता येईल. एक मतलब जनरल जो है सभी के मन में एक चीज होती है कि हमें बहुत तुरंत पैसा अधिक मिलना चाहिए, और जनरल प्रैक्टिस करने के साथ में हमारी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया हमें जाने, सारी दुनिया हमें जाने, और हमारी कोई तो एक स्पेशलिटी हो जनरल प्रैक्टिस में, ताकि सारे रुग्ण हमारे पास में किसी ना किसी बहाने आते रहे. ये तो स्वाभाविक अपेक्षा होगी. तो मैं यह कहूंगा यहाँ पर कि आयुर्वेद में जो श्लोक कहा है
क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित यश कर्माभ्यास क्वचित चेती चिकित्सा नास्ति निष्फला। आपको जब भी आयुर्वेद की चिकित्सा करनी है तो मुख्यतः आपको दो चीजें महत्व की है। एक तो आपकी खुद की श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी खुद की श्रद्धा होनी चाहिए आयुर्वेद के प्रति। अभी श्रद्धा कब बढ़ेगी? कोई श्रद्धा आपको मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा बढ़ाना, श्रद्धा बढ़ना, इसके दो प्रमुख मुख्य वजह है। एक तो आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए का मतलब क्या है कि आयुर्वेद के जो सारे सिद्धांत है उन सिद्धांतों को आपको समझ लेना चाहिए। आप सिद्धांत को नहीं समझेंगे, मान लो यदि आप चिकित्सा करते हैं जनरल प्रैक्टिस के अंदर और कफ, कोल्ड और फीवर इसके बारे में यदि हम करेंगे तो खाली आपको यदि इतना ही पता होगा, मान लो कि हमको जनरल प्रैक्टिस में कभी कभी पैरासिटामोल देनी पड़ती है एलोपैथी की, कभी कभी पेन किलर देना होता है, कभी कभी तो जो है क्या है एंटीबायोटिक का भी यूज करना पड़ता है जनरल प्रैक्टिस में। लेकिन आपको खुद को यदि स्वयं को आयुर्वेद का चिकित्सक जानना करके आपको यदि फेमस होना है तो चार चीजें बड़ी जरूरी है। उसमें से एक जो है आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए, दूसरा जो है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद। जब भी आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रिंसिपल्स को आपको समझना पड़ेगा, आयुर्वेद के प्रिंसिपल। तो कफ, कोल्ड और फीवर ये तीनों दोष जो है मुख्यतः आमाशयोत्थ व्याधि है। मुख्यतः आमाशयोत्थ व्याधि, उनका उद्भव स्थान आमाशय, प्रसार कहीं पे भी हो, प्रचार कहीं पे भी हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उद्भव स्थान क्या है, तो आमाशय है। अभी आमाशय को हमको हिट करना, ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। तो चिकित्सा या जनरल प्रैक्टिस के अंदर आपको ये चीजें ध्यान में रखना जरूरी है कि सीजन क्या है, अभी कौन सा सीजन चल रहा है, सीजन के अनुसार हमें क्या चिकित्सा करनी चाहिए। सीजन के अनुसार हमें एक तो चिकित्सा क्या करनी चाहिए महत्व का है, उसके साथ साथ में सबसे बड़ी महत्व की बात है कि हम सारे वैद्य, सारे जनरल प्रैक्टिशनर क्या करते हैं कि बड़े मुश्किल से 2-4 दवाई अपने घर में बनाते हैं। मित्रों, इस जरिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कम से कम हर एक प्रैक्टिशनर ने, जनरल प्रैक्टिशनर ने कम से कम 50 ड्रग्स खुद बनाना चाहिए यदि आपको जनरल सुपर प्रैक्टिशनर बनना है। यदि 50 ड्रग क्यों करना चाहिए, इसका मैं आपको कारण समझाता हूं। अभी पूरे विश्व में सारे लोगों को आयुर्वेद का बोलबाला होने के नाते यदि आप त्रिभुवन कीर्ति या प्रिस्क्राइब करते हो तो पीपल नो दैट त्रिभुवन कीर्ति यूजफुल फॉर द फीवर, कफ एंड कोल्ड, राइट। फिर आप महासुदर्शन वटी आप यूज करते हो, लिखते हो तो पीपल आल्सो नोइंग ऑल दिस थिंग्स। अनदर च्यवनप्राश आप यदि प्रिस्क्राइब करते हो तो सब लोगों को पता है। तो आप जब भी आप अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसके ऊपर यू मस्ट यूज द सिनोनिम्स ऑफ द ड्रग। जो भी कोई ड्रग लिखेंगे उसके सिनोनिम्स लिखते जाओ। उससे क्या होगा कि सिनोनिम्स के दो फायदे होंगे आपके। आप सिनोनिम्स यदि आप यूज करते हो तो उसमें एक तो खुद को आपको पता रहेगा और उसमें जो है कि आपकी शाश्वती रहेगी कि हमने क्या लिखा हुआ है, एक बात। दूसरी बात, यदि आप लिख के देते हो तो वो चीज आपको मार्केट में वो अपने आप खरीदेगा नहीं, ये सबसे बड़ी महत्व की बात। और तीसरी बात, जो भी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मान लो आप यदि दूसरे दिन किसी दिन आप यहाँ पे एब्सेंट हो अपने क्लिनिक में और वो व्यक्ति, वो रुग्ण यदि दूसरे वैद्य के पास में जाता है और मान जैसे कि आपको अडुल्सा यूज करना है, आधा थोड़ा वसा का यूज करना है, many times you have to use the Latin name of the particularly that drugs given। तो आप यदि वासा लिखते हो तो पीपल, जनरल पीपल जो जितने हैं वो जो आयुर्वेद के पास में आते हैं जनरली अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास वाले लोग ही आते हैं। लोअर मिडिल क्लास वाले लोग बहुत कम आते हैं आपके पास में आयुर्वेद के लिए पूछने के लिए। लेकिन आपकी ये जवाबदारी है कि आप साथ साथ में, आपको भले जो भी आपको ड्रग्स देना है लेकिन आपको आयुर्वेद अपना प्रचार प्रसार करना है, तो साइमल्टेनियसली आप अपनी दवाइयां उसे, मान लो आपको पैरासिटामोल दे दिया है आपने, लेकिन उसके साथ में यदि आप कहेंगे कि ये पुड़िया लो, जो पुड़ी के वजह से आपको बड़ा बड़ा लाभ होगा, तो
तो इससे धीरे धीरे आपकी जनरल प्रैक्टिस के अंदर खुद का विश्वास भी बढ़ेगा। और दूसरी बात, उसके साथ में ड्रग्स आप जो दे रहे हैं उसके प्रति रुग्णों का भी विश्वास बढ़ेगा। धीरे धीरे आयुर्वेद के प्रति जैसे जैसे विश्वास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपके पास में रुग्ण भी बढ़ते जाएंगे। और कुछ समय बाद आपको ऐसे पता चलेगा कि हम अभी एलोपैथिक नहीं करें तो अच्छा है, अभी अपने को तो अच्छा पोजीशन मिल गया है, तो हम लोग अभी जो है कि सुपर आयुर्वेद कंसल्टेंट करके भी यहाँ पे या तो सुपर जनरल प्रैक्टिशनर करके हम वहां पे प्रस्थापित हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। सबको अपेक्षा तो है कि भाई सब कुछ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, जिसके पास में पैसा हो वैद्य अच्छा है। तो मित्रों, मैं तो ये कहूंगा कि सब चिकित्सा करते समय कभी कभी आपको मित्र बनेंगे, जो मित्र जो है अनेक रुग्णों को साथ में लेके आएंगे। उसी तरह से पैसा भी आपको मिलेगा जो चार्ज करना। मान लो एक बार आपको ये बात समझ में आ गई कि अमुक अमुक ये दवाई देने के बाद में ये डॉक्टर के पास में बहुत उत्तम चिकित्सा है, तो 10-12 पेशेंट वो साथ में लेके आएगा, जिससे आपकी कीर्ति भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे कीर्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे आप अपनी दवाइयां देते रहेंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप किताब खोलेंगे। जैसे किताब खोलेंगे तो यू विल फाइंड सम प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद, और जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद आपके काम करने लगेगा तो आपका विश्वास उसके ऊपर बढ़ेगा। इसलिए मैं मेरे इस लेक्चर के द्वारा मैं सभी से निवेदन यह करना चाहता हूं कि कम से कम रोज आयुर्वेद के एक किताब का कोई भी एक पन्ना रोज पढ़े। और नहीं पढ़ना है, मान लो एक पन्ना नहीं आपको समय मिल रहा है, कम से कम एक लाइन रोज याद करो, एक लाइन, केवल एक लाइन। और मैं तो इसके आगे और कहता हूं, यदि एक लाइन भी नहीं पढ़ना आपको जम रहा है, वो संभव नहीं है, तो कम से कम एक शब्द को तो भी याद करो, जो शब्द आपके लिए विधेय परमादरः रहेगा। और इस तरह से आपका खुद का विश्वास और आपकी प्रैक्टिस भी धीरे धीरे अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएंगी। और बढ़ने के बाद में क्या होगा, जैसे आप सुपर जनरल प्रैक्टिशनर बन जाओगे, उसके बाद में क्या होगा, क्या आपके दिमाग में नई नई चीजें उत्पन्न होगी, जो चीजें उत्पन्न होने के बाद में वो इनोवेटिव के रूप में बदल सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति ने अपनी किताब की 2 लाइनें कम से कम पढ़ना चाहिए। साथ साथ में क्या होता है कि सीजन, आपको पता है कि इस सीजन में क्या क्या बीमारियां होंगी, उसकी आपको दवाइयां पहले आपको अपने क्लिनिक में ला करके रखनी होगी, उसकी बनानी होगी। 50 ड्रग तो भी आपने, मैंने आपको पहले भी कहा कि 50 ड्रग अपने आप के बनाना चाहिए। और हमको खुद को और डेवलप करना है तो क्या करना चाहिए, जनरल प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास में इतना वर्कशॉप इसके जरिए अपने कान खुले रखना चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी सारे लेक्चरर्स होते हैं, everybody should attend at least seminar, workshop, nearby webinars, whatever available with you, you must attend it. That is important thing. जनरली जनरल प्रैक्टिस के अंदर 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं, दूसरी बात ऐसा होता है कि कट प्रैक्टिस में बहुत सारा पैसा मिल जाता है तो बहुत ज्यादा लफड़े में पड़ते नहीं लोग। लेकिन मित्रों, मैं ये कहूंगा कि एक तो एथिकल प्रैक्टिस वाले होते हैं, दूसरे जो ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं, तीसरे कट प्रैक्टिस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और कभी कभी लोग तो जो है डिपेंडिंग प्रैक्टिस में रहते हैं। कि ऐसे 4 प्रकार के जनरल प्रैक्टिशनर में मिलते हैं। लेकिन मेरा इसके जरिए आपको निवेदन यही है, एक शब्द रोज पढ़ो, जिसके जरिए मेरा तो 33 साल का ऐसा अनुभव है कि जो चीज मैं पढ़ता हूं वो हफ्ते में उसी के पेशेंट ज्यादा आते। मित्रों, आप भी यदि देखेंगे, आप पढ़ना चालू करो, और यदि ऐसी चीजें आपके इसमें आपके प्रैक्टिस में अंदर नहीं आई तो मुझे बताना। दावे के साथ में कहता हूं, जो पढ़ेंगे उसी के केसेस आपके पास में तुरंत आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ी महत्व की बात यही है कि उसमें
प्रैक्टिस करते समय हम लोगों ने सभी ने ऑनेस्टली प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑनेस्टली का मतलब क्या? ऑनेस्टली का मतलब आप यदि प्रैक्टिस के अंदर यदि कहते कि भैया टाइफाइड है, ये मलेरिया है, और अकॉर्डिंगली आप कोई मेडिसिन एलोपैथिक वाले देते हैं या आयुर्वेद की मेडिसिन देते हैं, तो पहले तो ये समझो कि भाई व्याधि क्या है, उसका नामकरण कम से कम प्रयत्न करो देने का आयुर्वेद के हिसाब से। अपने पूरे केस पेपर में लिखो तो 3 चीजें महत्व की लिखनी है आपको। एक तो क्या है, व्याधि यानी क्या? दोष दुष्य समूर्छना जनितो व्याधि। दोष और दुष्य इतना आप लोग जान लो तो अब आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी कि हमें चिकित्सा क्या करनी। क्योंकि चिकित्सा का सूत्र क्या है कि तेषाम विघटनम एव चिकित्सा, उनकी विघटन करना यही उत्तम चिकित्सा है। इसलिए और फिर चिकित्सा कौन सी है? चिकित्सा किसको कहेंगे? प्रयोग शमयेत यो व्याधि न अन्यम उदीरयेत। जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी प्रयोग करते हैं, जो भी औषधियां देते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उसके करने के बाद कोई भी दूसरी व्याधि नहीं होंगी, इसका ध्यान देना जरूरी है। यदि वो व्याधि नहीं होती तो वही सही मायने में नासौ विशुद्ध चिकित्सा, वही शुद्ध चिकित्सा है। इसलिए ऐसे शुद्ध चिकित्सा करने के लिए आपको प्रिंसिपल्स की आवश्यकता होती है। हम लोग अभी आपको ये बेसिक, मैंने इंट्रोडक्टरी आपको ये सब सारी चीजें बताई कि जिसके अंदर ये बड़ी चीजें महत्व की होती है। तो अभी हम सीधे कफ, कोल्ड और फीवर, इनके ऊपर यदि हम स्विच ऑन होते तो अपने प्रैक्टिस में हम लोग क्या करेंगे। तो कफ, कोल्ड और फीवर के अंदर जनरल प्रैक्टिस में कम से कम आपको 4 चीजें याद रखनी है, जो मैंने पहले बताया कि केस पेपर लिखते समय आप पेशेंट का एज क्या है, कम से कम एज लिखो। उसके बाद में ऑक्यूपेशन क्या है। मित्रों, ऑक्यूपेशन के अंदर मैं आपको एक उदाहरण यहाँ पे देता हूँ, और जिससे आपको समझ में आएगा कि ऑक्यूपेशन कितना महत्व का है। हम क्या ऑक्यूपेशन है, जैसे कि आपके पूरे बंबई एरिया में पूरा पॉल्यूटेड एरिया है। कहीं पर जो केमिकल फैक्ट्रीज है, कहीं पर वो केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, कहीं पर जो है धूली बहुत होती है, कहीं पर जो है गैसेस बहुत ज्यादा होते हैं अलग अलग प्रकार के रोड के ऊपर। ये सारी चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा प्रतिष्ठा के अंदर। यह प्रतिष्ठा है मान लो, तो उसके साथ इसमें सबसे महत्व का है ऑक्यूपेशन। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, थोड़ा सा अलग सा है, लेकिन आपको उसका महत्व समझना है। उदाहरण ऐसा है कि एक रुग्ण था, मालेगांव के अंदर हम कैंप कर रहे थे, और वहां पे एक रुग्ण आया, डॉक्टर साहब मैं 20-25 डॉक्टर तो हो गए, मेरे सीने में का दर्द तो कुछ कम नहीं हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा आपको फिर जाकर के आधा घंटा पूरा हिस्ट्री लेने के बाद में पता चला कि भाई तेरा तू काम क्या करता है। बोले मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठने के बाद जो है मैं गौवा, जो कम से कम 20-25 गौवा उनको धोता हूँ और उनका दूध निकालता हूँ, और उसके बाद में बांटने का काम मैं चालू करता हूँ, दूध बांटना। और करीब 10 बजे तक ये सब दूध का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बाद में मैं घर पे आ जाता हूँ। मैं क्या आपको कितने साल से तकलीफ है? सर ये तो 4 साल से तकलीफ है। जहीं पे भी कहीं पे भी जाऊँ तो कोई भी डॉक्टर को यदि सीने का दर्द बोला तो पहले तो जो है कि वो ईसीजी निकालता है, ईसीजी निकालने के बाद में बोले स्ट्रेस टेस्ट करके आओ, फिर बोले और 5-6 प्रकार की जो है आपको इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। सारे कई बार 18-19 डॉक्टर हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी सारे वही, इससे मैं तंग आ गया हूँ। सर मेरा सीने का दर्द कैसे खत्म होगा, मुझे बताइए। मित्रों, यहाँ पर एक बात समझ लेना है सब आयुर्वेद वालों ने, यदि कोई भी रुग्ण 20-25 जगह पे घूम के आपके पास में आता है तो समझ लेना वो सारी चीजें जो उन्होंने पूछी है वो कभी भी आपको दोहराना नहीं है। ये सबसे महत्व की बात है। तो करना क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिव फैक्टर पर्टिकुलरली सो फार एज दैट डिसऑर्डर इज कंसर्न। तो हेतु निदानम परिवर्जयेत, हेतु को ढूंढो और हेतु को बाहर निकालो। फॉर दैट यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद द पेशेंट। यदि आप उसके लिए समय नहीं निकालते तो आपको कार्य कारण भाव नहीं समझ आएगा। अब ये देखो आप यहाँ के जो उसका सीने का दर्द क्यों था, तब जाकर मैंने कहा ये सारे सब पॉजिटिव है, तो अभी तक की यदि हार्ट का इसको तकलीफ थी तो ये अभी तक तो मर जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई तो भी दूसरा आवश्यक कारण। तो गाय धोना, ये जो एक्शन होती है गौवा धोने की, इसपे से आपको पता चल जाएगा कि पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर मसल्स के ऊपर
जो मस्कुलर वात हो चुका है, मांसगत वात हो चुका है, जिसके कारण उसके सीने में दर्द था। ये बात मुझे वहां पे क्लिक हुई। मित्रों, जब आप अच्छे से रुग्ण को जांचने का प्रयत्न करेंगे, साथ साथ हेतु ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, तब जाकर के आपको वह सही मायने में कारण प्राप्त होगा। और उसको खाली कुछ एक ही बात कही मैंने कि भाई यहाँ पे अभी जो मांसगत वात हुआ है उसको करना क्या है, हार्ट की बीमारी तो है नहीं, पक्का है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, नाड़ी नॉर्मल है, हर बार जो ईसीजी निकलता है वो भी नॉर्मल आता है, सारे पैरामीटर सभी नॉर्मल है। तो खाली अभ्यंगम, केवलम अभ्यंगम, खाली अभ्यंग करने के लिए कहा। और दूसरा एक कहा कि भाई 15 दिन निदानम परिवर्जय। मैंने उनको कहा भाई आप ऐसा कर सकते हो क्या, आप ये जो आपका कार्य जो है वो किसी को 15-20 दिन के लिए शिफ्ट कर सकते हैं क्या? बोले हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। 15-20 दिन के बाद में शिफ्ट करने के बाद में ऐसे पता चला 20 दिन के बाद में उसका पूरा दर्द, आज 9 साल हो गए, अभी तक के उनको कोई भी तकलीफ सीने की नहीं है। तो ये महत्व का कारण है मित्रों कि ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिव फैक्टर्स सो फार एज दैट डिसऑर्डर इज कंसर्न। अभी मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूं जो जनरली आपको ये बात समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी हर एक व्यक्ति ने कॉज ढूंढना बड़ा जरूरी है। वो कैसे? शास्त्र में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और सूत्र रूप में लिखी हुई है, और बहुत सारी चीजें लिखी हुई नहीं, अनुल्लिखित है। उन सारी चीजों को आपको समझ में लाना पड़ेगा। सबसे पहले जो क्या है कि एक हमारे यहाँ डॉक्टर राणे करके हैं, उनकी सास, वो उनका फोन आया, नरेंद्र म्हणे अरे यार वर्षभर झालं मी सगळे औषध देतोय, अँटी एलर्जिक औषध दिले, अँटीबायोटिक दिले, अजून या आमच्या सासूबाईंचा काही खोकला जात नाही। आपल्यासाठी फार सोपं अशी गोष्ट है, हमारे लिए बहुत ही आसान तरीका हो गया कि यदि एक एमडी एमएस डॉक्टर अपने सास को 1 साल से दवाई दे रहा है, अलग अलग फिजिशियन हो चुके हैं, लेकिन खांसी नहीं जाती, तो आपको कॉज ढूंढना पड़ेगा। कॉज क्या ढूंढेंगे? आपको पूछना पड़ेगा कि भाई आप कितने बजे उठती हो, उठने के बाद में रात को सोते समय तक क्या क्या आप करती हो, इसका आप ब्यौरा बताओ। आपको उनको सुनना पड़ेगा। जैसे आप सुनेंगे आपको पता चला, मुझे ये पता चला कि सारा सुनने के बाद में तो वो टूथपेस्ट यूज करती, और टूथपेस्ट कोलगेट जैसी सारी टूथपेस्ट जिसके अंदर फोमिंग एजेंट है, वो फोमिंग एजेंट क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि उससे क्या क्या व्याधियां हो सकती है। मित्रों, ये बड़ा जरूरी है। इसी तरह से हमारे जनरल प्रैक्टिस के अंदर हम सभी लोगों ने ऐसे एक एक कॉज ढूंढना पड़ेगा। तो वो पेस्ट के अंदर आपको नीचे लिखा हुआ पड़ेगा फोमिंग एजेंट क्या है, तो सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट इज वन ऑफ द कॉज गेटिंग मेनी डिसऑर्डर्स। उसमें से मैंने खाली उनको ये कहा कि भाई आप जो है ऐसा करो कि आप कल से जो है ये टूथपेस्ट यूज करना बंद करो। मैं आपको दंतमंजन दे रहा हूं, इस मंजन से आपको दंतमंजन करना है, लेकिन महीने भर आपको ये टूथपेस्ट बंद करनी पड़ेगी। और साथ में फिर प्लेसिबो मेडिसिन दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है यदि आप उसके साथ में मेडिसिन नहीं देते हो तो समझ लेता है रुग्ण यार इसको, एक तो पहले डॉक्टर से आया हुआ था पेशेंट, या साले वो डॉक्टर को कुछ खाली दवाई नहीं है, पैसे मिलने वाले नहीं है करके जो इसने बोल दिया कि टूथपेस्ट बंद करो। मित्रों, ऐसा नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा। हर बार आपको कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। वो बंद करने से 5वें दिन ही उनकी खांसी जो बंद हो चुकी थी, आज 6 साल हो गए उनको खांसी है। शी इज नॉट यूजिंग एनी टूथपेस्ट। आपको ये टूथपेस्ट की और एक कहानी बताऊं, आज अच्छा मुझे चांस मिला है तो मेरे पास में ईएनटी सर्जन जो है कई बार जो स्टोमाटाइटिस के बहुत सारे केसेस भेजते थे, और नरेंद्र म्हणे यार हे स्टोमाटाइटिस बरा होत नाहीये, काय करायचं? म्हटलं सर पाठवा केसेस माझ्याकडे, मी बघतो काय करायचं ते। मग काय गुळण्या वगैरह आपण दिल्या, कुछ गंडूश करने के लिए दवाई दी, कुछ कवल करने के लिए दवाई दिया, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि ये भी जो काम नहीं कर रहा है। तब जाकर के मुझे फिर से याद आया कि हम लोगों ने फिर से हिस्ट्री लेना चालू किया। फिर से हिस्ट्री लेने में यही पता चला कि भाई जो है सोडियम लॉरिल सल्फेट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। सोडियम लॉरिल सल्फेट को बंद करना, तो सोडियम लॉरिल सल्फेट किस किस में होता है मित्रों? तो आपको बताऊं, सोडियम लॉरिल सल्फेट जनरली यूज्ड इन द सोप।
सोप में जो फोमिंग एजेंट होता है वो सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है मित्रों। तो यह खाली बंद करने से हफ्ते भर में सारे के स्टोमाटाइटिस ठीक, मुखपाक ठीक हो गए। आपके लिए शब्द मैंने कहा स्टोमाटाइटिस, लेकिन सर्वसर व्याधि है, मुखपाक व्याधि है, फिर दंत वेष्टन व्याधि है, ऐसे बहुत सारे व्याधियां है जो खाली जो है कि टूथपेस्ट बंद करने से यह व्याधि फटाफट ठीक होते हैं। यह हमारी खुद सभी लोगों की, सभी प्रैक्टिशनर की जिम्मेवारी है। आप प्रैक्टिस भले आपके पास में 200-300 पेशेंट हो, लेकिन ऐसा एक पेशेंट आता है, मिलता है आपको, हर रोज एक मिलेगा कि जिस प्रैक्टिस के अंदर आपको सबसे बड़ी महत्व क्या, तो एक पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब ये सब तो हो चुका है, कुछ तो करो मेरे लिए, हम तो तंग आ गए, आपकी दवाई से भी तंग आ गए, अभी हमको कहीं जाना है नहीं और हमें और किसी के यहाँ पास भेजो, आप हमको ढूंढो और हमको जो है कोई ना कोई दवाई अच्छी दो कि जिससे हमारी बीमारी बदल जाए। तो सिंपल सा कास, इसके कारण क्या है अपने प्रैक्टिस के अंदर हमको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन गनशॉट ट्रीटमेंट के अंदर आपको मैं बता दूं कि प्रतिशय के अंदर आपको 3 चीजें करनी है। गनशॉट ट्रीटमेंट सबसे बढ़िया, और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ना चालू हो जाएगी। कुछ करना नहीं है, नारियल का तेल यदि आप हर एक व्यक्ति को रोज नाक में डालने के लिए कहते हैं, एक, और दूसरा मतलब नशे के रूप में, प्रतिमर्श नशे के रूप में, और दूसरी बात उसी तेल से कपाल से लेकर के नासा तक और मैक्सिलरी साइनस तक आपको सिकाई करने का रोज करते हैं। तो ये 2 चीजें सबसे बड़ी महत्व की बात है कि जिससे आपका प्रतिशय फटाफट हटने में मदद करेगा। यह प्राइमरी रूप में आपको यह चिकित्सा करनी चाहिए। पानी के तो यह 2 चीजें बड़ी महत्व की है। साथ साथ में यदि आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस जैसे बढ़ानी हो प्रतिशय के लिए, तो क्या करना चाहिए? एक धूमावर्ती बनाइए जिसके अंदर 4 कंटेंट है केवल। एक तो एकोरस कैलामस पाउडर, मतलब वचा वेखंड, जिसको मराठी में वेखंड कहते हैं। वचा सबको पता है। वचा के अंदर जो है आप गुगुलू, वचा में गुगुलू डालो, थोड़ा सा घृत डाल दो और थोड़ा सा बीबीतकी डाल दो। इससे आप जो है वर्ती बनाओ। और वर्ती कैसे बनाने की, इसका प्रैक्टिकल कभी मौका मिला तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको एक शब्दों के रूप में कहता हूं कि 2 बाय 4 इंच का जो है गॉस पीस लेना, उसके ऊपर ये सारी पेस्ट बना करके उसको चिपका देने की, और बीच में जो है जो अपना पेन है, पेंसिल या तो पेन, उसका रिफिल जो है बीच में रखने की और राउंड अप करने का। राउंड अप करने के बाद में रिफिल निकाल देने की और सूखने के लिए रख देने का। तो बीच में आपको हॉलो पोर्शन मिलेगा। जो हॉलो पोर्शन से आपको वहां से जो है धुआं आप इनहेल कर सकते हैं। इसी तरह की यह सिगार आपको मिलेंगे। यह सिगार ऐसे आप बन जाएंगे। यह सिगार को जो है आपको जलाना है। लाइटर सिगार जलाने के बाद में हर एक को बोलो कि भाई या तो आपको करना है जनरल प्रैक्टिस के अंदर कि भाई ये जो सिगार का आपको धूमपान के लिए आपको यहाँ पे रोज आना पड़ेगा, तो उनको रोज बुलाओ। सबसे बड़ी बात, आसान बात है। उसी के साथ में रिपीट करो। अच्छा, यहाँ पे एक यह है कि रिपीट करो इसको। तो 2 बाय 3 इंच का गॉस पीस काट लेना है। गॉस पीस, उसके अंदर आप जो वचा, हरित की, विभित की और घृत और सिक्त, इनका प्रमाण डाल करके उसका जो पेस्ट बनाने का, यू हैव टू अप्लाई दैट पेस्ट ओवर द गॉस पीस। गॉस पीस के बाद में बीच में जो है आपको रिफिल डाल देनी। रिफिल रखने के बाद में एक ही तरफ से आपको रोल करना, एक ही दिशा से रोल करने के बाद में वो सीधी सी ऐसी है वर्ती बन जाएगी। और इसके अंदर से जो बीच में जो है यदि वो निकाल लेते हैं आप रिफिल, तो बीच में हॉलो पोर्शन मिलेगा जो काम क्या करेगा, तो धुआं अंदर खींचने के लिए बहुत आसानी से काम करेगा। और मैं आपको बताता हूँ किसी तरह से ये धूम्रपान करने का, तो सबसे बढ़िया धूम्रपान जो है ये इस ढंग से कर सकते हैं। 3 बार इधर से, 3 बार इधर से, ऐसे 9 बार, 3-3 बार यदि धूम्रपान के लिए कहते हैं आप, तो सबसे बड़ी आसान और जल्दी, बहुत तुरंत, मतलब जिसके अंदर क्षवतु स्नीजिंग बहुत होता है, वो स्नीजिंग बंद करने का कार्य जो है यह, तथा जो ड्रॉपिंग होता है, पीनस होता है, जो स्राव बहता है, उसको कम करने के लिए यह धूमवर्ती अच्छा काम करती है। इस ढंग से आप यदि खींचते हैं
3 बार यहां से, 3 बार दूसरी नॉस्ट्रिल से। ऐसा आप ये वर्तिया बनाओ। इसमें 3 फायदे हैं। एक तो क्या, ड्रग आपने खुद ने चुना है, और ड्रग चुनने के बाद में उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, उसका प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। एक दूसरी बात, ये वर्ती दुनिया में कहीं मिलने नहीं, वो बाजार में जाए तब भी नहीं मिलनी उसको। ये वर्ती कहीं मिलना नहीं है, क्योंकि बाजार में ये वर्ती है नहीं। इसका लाभ होने के बाद में फिर से जो यदि उसको आना है तो वापिस वो अपने पास नहीं आएगा, जाएगा कहाँ साला बेचारा, है ना। अच्छा, ये पूरी धूमवर्ती बनाने के लिए केवल 1 रुपया खर्चा है। यू में चार्ज 100 रुपीज, नो प्रॉब्लम। कौन पूछ रहा है आपको भाई कितना चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि आप ये धूमवर्ती बनाते हो और धूमवर्ती प्रोवाइड करते हो, तो डेफिनेटली भले आपको पैरासिटामोल देना हो और कोई एलोपैथिक ड्रग देना हो जिससे वो ठीक हो नहीं ठीक हो, अपने को कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन कम से कम ये धूमवर्ती, यदि आपके पास में ये नली नहीं है, ये पेट्रोल की नली है, ये पेट्रोल की नली आप काट लो, पेट्रोल की नली के भी पैसे बना सकते हो। जो 10 रुपए की नली है जो आप 50 रुपए में दे सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। इस ढंग से आप उसको यहाँ पे लगाओ और उसको, और सिंपली यदि कुछ नहीं जमता है तब भी आप ऐसे भी पी सकते हो। बड़े स्टाइल में पियो, लोगों को मजा आएगा उसमें पीने में भी, ऐसे पीने। तो ये धूमवर्ती। अभी ये धूमवर्ती किस किस की बनानी है? आपको श्वासज्ञ वो धूमवर्ती भी बनानी है, प्रतिशाहर धूमवर्ती। श्वासज्ञ धूमवर्ती में 3 चीजें। एक तो धतुर पत्र सबसे बड़ा महत्व का है, उसी के साथ में आप बीबीतकी डाल दो, धतुर पत्र चूर्ण और बीबीतकी, उसके साथ में आप थोड़ा सा घृत और सिक्त दोनों मिलाकर के उसकी जो है आपको वर्ती बनानी है, और वर्ती आपको यूज कर सकते हैं। ऐसे अपने दिमाग से हम कई सारे ड्रग्स खुद के बना सकते हैं, जो ड्रग हर एक व्यक्ति ने अपने अपने क्लिनिक के अंदर यूज करना चाहिए। तो मैंने आपको 4 चीजें बताई। जब भी आप प्रिस्क्राइब करोगे, you should either use the synonyms of particularly that drugs, or you should use the Latin name, क्योंकि लैटिन नेम भी सामान्य आदमी को पता नहीं रहता। बहुत कोई साइंटिस्ट हो तो भी उसको पता चलेगा कि व्हाट इज एकोरस कैलामस, व्हाट इज एजाडिरेक्टा इंडिका, व्हाट इज टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उससे 2 चीजें होती है। ये सब यदि आप रोज लिखते हो तो आपको फिर से याद करने की जरूरत नहीं होती है कि भाई अपने को क्या लिखना है, वो अपने आप सब याद हो जाता है। और हमको उसमें यदि आप राइटिंग में रहते हो तो लोगों को, मान लो यदि आप प्रिस्क्रिप्शन लेकर के दूसरे वैद्य के पास में गए, अपने को कोई डरने की बात, क्यों डरने की बात नहीं? क्योंकि यह जो आपने ड्रग्स बनाया है वो ड्रग आपने खुद ने बनाया है, और यह खुद ने बनाने से आपको पता है कि उसका इफेक्ट अच्छा आने वाला है। दूसरे वैद्य के पास में यदि मान लो उसमें आपने यहाँ पर लिख दिया कि सिंहास से चूर्ण है, सिंहास से इज द सिनोनिम्स ऑफ अदातोड़ा वासा, अडोल्सा वासा। यदि उसको सामने वाले वैद्य को सिंहास से पता नहीं है तो उसको किताब खोलनी पड़ेगी, ये सिंहास से क्या लफड़ा है। यदि उसको किताब नहीं खोलनी है तो बोलेंगे जान दो यार, ये तो अपने पास में है नहीं भाई, तू जा जहां से ली दवाई ली वहीं से तू जा, वहीं से तू दवाई ले ले, बात खत्म कर। ये तो ऐसी एक चीजें जो शास्त्र को लेकर के हम यदि चले रहेंगे तो एक तो हमारा खुद का स्टडी होगा, हमारा अभ्यास होगा, अभ्यास होने के बाद में आयुर्वेद को डेवलप करने में भी आप कारणीभूत रहोगे। सबसे बड़ी महत्व की बात है ना। तो ऐसे दिन में आप यहाँ पे बोला है कि काल कौन से है, अभी एक प्रश्न आया है। तो काल का मतलब यह है कि आप दिन में 6-7 बार जो काल बताया है शास्त्र में, उसके अनुसार आप धूम्रपान कर सकते हो। देखो, नहाने के बाद, खाना खाने के बाद, सोने से उठने के बाद, ऐसे जो जितने भी काल बताए वैसे आप काल उनको बता सकते हो। लेकिन दिन में जनरली जो पीनस वाले होते हैं उनको जब भी छींके आती है उनको आप ये करो कि भाई ये धूम्रपान करो, बेचारे को अच्छा लगता है, वो 10 लोगों को और बोलता है यार छींके नहीं जा रही, चल तू मेरे साथ में मेरे डॉक्टर के पास, चल वहां पे वो सिगार देते, उससे आपको अच्छा लगेगा। मित्रों, कहने का तात्पर्य है, लेकिन साथ में आपको 3 चीजें करना जरूरी है। क्या भाई? ये वातज है, पित्तज है, कफज है, द्वंद्वज है, क्या सान्निपातिक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें उसमें समझ में आएगी। तो ये बड़ी आसान सी चिकित्सा है प्रतिशाही की, ये चिकित्सा करनी चाहिए। ड्रग्स क्या देना है? ड्रग्स आप सबको पता है, त्रिभुवन कीर्ति दो, लक्ष्मी विलास रस दो, और क्या श्वासक चूर्ण दो, तालिसादी चूर्ण दो, वचा डालो उसमें, और रस सिंदूर नहीं ठीक हो रहा है तो रस सिंदूर भी डालो, और कुछ जो भी कुछ डालना है वो सारे डालते रहो।
ठीक है। लेकिन आपको ये सब चीजें घर पे यदि करते हैं तो उसका लाभ बहुत मिलता है। साथ साथ में आपको ये 2 चीजें ध्यान रखनी है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्टली प्रकृति ऑफ पर्टिकुलरली दैट पेशेंट। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है ना ड्रग्स वगैरह लिखते हैं ना, तो एलोपैथिक जैसा नहीं है हमारे पास कि भाई जो ये पैरासिटामोल एक एक गोली 4 बार ले लो, उसी तरह से ताली सादी चूर्ण आधा आधा चम्मच 4 बार। एक ध्यान में रखो, चाहे वो कफ हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे वो श्वास हो, सारे में आपको क्या करना है, तो ये जो भी ड्रग देना है, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी वाला डिसऑर्डर है, प्राणव स्रोतस का व्याधि है। प्राणव स्रोतस के अंदर एक सूत्र ध्यान में रखना है कि जो भी औषधि देना है वो मुहुर्मुहुर दद्यात्, मुहुर्मुहुर देंगे तब जाकर के नासा से लेकर के पूरा तक के सारे जो दोष है उनको कम करने में या निकालने में, दोनों तरफ अच्छा कार्य कब करता। मुहुर्मुहुर दद्यात्, धीरे धीरे, मुहुर्मुहुर है ना, बारंबार थोड़े थोड़े समय में देना चाहिए। एलोपैथिक जैसा नहीं है कि ताली सादी चूर्ण 1 चम्मच जो है 4 बार दिन में ले लो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यदि ये कफज से है तो आपको मधु का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि ये वातज है तो केवल उष्णोदक पान करवाने को लिए बोल दो। खाली उष्णोदक पान करने से शुरुआत में सबसे पहले जो है प्रतिशय वातज ही होता है। इसलिए यदि रूप में, पूर्व रूप में ही आ जाता है रुग्ण, तब भी आप ये कह सकते भाई गर्म पानी, बात खत्म करो, गर्म पानी पीने से आपको फायदा तुरंत मिलेगा। ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। साथ में जब भी आप केस लेते हो तो जो भी सिम्टम्स लिखने हैं वो सिम्टम्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए पेपर पे। ऐसा नहीं है उसने जो बताया, कई बार क्या रुग्ण जो है ना वो ढंग से बताता नहीं, फिर आपको पूछना पड़ेगा भाई कितने दिन से तकलीफ है, कौन सी तकलीफ पहले थी, कौन सी तकलीफ अब ज्यादा है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बताता है, हमको 2 चीजें समझ में आती है। ये शुरुआत वात से हुई है, कफ से हुई है, पित्त से हुई है, अभी जो लक्षण हो रहा है या अभी जो उपद्रव मिल रहे हैं वो कौन सा उपद्रव है उसको हमको जानना पड़ेगा। तो पहले आपको यदि उपद्रव को यदि चिकित्सा करना तो पहले उपद्रव की चिकित्सा करनी पड़ेगी, और उसके बाद में जो है मूल व्याधि की चिकित्सा हमको करनी पड़ेगी। इस ढंग से यदि हम करते हैं तो बहुत सारे बातें अपने को जीवन के अंदर, अपने प्रैक्टिस के अंदर ये अपनानी पड़ेगी। ये हो गई अतिशय की बात। दूसरी बात आपको बताऊं मैं, कास की चिकित्सा के अंदर, कास की चिकित्सा के अंदर जो सबसे बड़ी महत्व की बात है कि वातज कास है, पित्तज कास है या कफज कास है, इसको हमको जानना पड़ेगा। सबसे पहली बात, यदि वातज कास आप जान लिया है तो आपको महानारायण तैलपान करवाना पड़ेगा। क्या महानारायण तैलपान नहीं है तो केवल कोई भी उष्ण द्रव्य का क्वाथ बना करके उसके साथ में तिल तैल पान का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी महत्व की बात तो है प्रैक्टिस के अंदर कि महानारायण तैल जो बाजार में मिलता है वो खाली एक महानारायण तेल मिलता है। बहुत कम कंपनियां अभ्यंतर प्रयोग के महानारायण तेल बनाते हैं, क्योंकि आप सारे लोगों को यदि बताएंगे कि भाई महानारायण तेल को, तो उनको आपको बताना पड़ेगा प्रिस्क्रिप्शन को लिखना अभ्यंतर प्रयोग जहां पर लिखा होगा फॉर द इंटरनल यूज, ऐसा ही द्रव्य आपको लाना चाहिए। एक्सटर्नल जो है उसका टर्पेंटाइन ऑयल, टार्पिन ऑयल होता है जो तुरंत आपका दर्द कम करता है। लेकिन यहाँ पर आपको अभ्यंतर पान करना है तो सही मायने में तो महानारायण तेल है अभ्यंतर प्रयोग के लिए ही बनाया गया है। लेकिन अपने सारे कंपनियों ने जो है अपने पैसे कमाने के हेतु उसमें टार्पिन डाल करके महानारायण तेल मालिश करने के लिए सबको दे रहे हैं। लेकिन वहां पे आपकी खुद की जिम्मेवारी है कि वह जो महानारायण तेल है वह महानारायण तेल, यहाँ पे प्रश्न है कंपनी फॉर महानारायण तेल कौन सी कंपनी है। मित्रों, आयुर्वेद सेवा संघ नासिक कंपनी अभ्यंतर प्रयोग के लिए स्पेशल है। उसी के साथ में सूरत की आस्पा कंपनी है, वो भी महानारायण तेल अभ्यंतर प्रयोग के लिए बनाती है। ऐसे बहुत सारी कंपनी आपके अगल बगल में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी बनाती है। और मैं तो ये कहूंगा इस जरिए, मैं कंपनियों का जानी दुश्मन नहीं हूं, लेकिन कंपनियों में जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति ने, रुग्ण ने कंपनियों में क्या चल रहा है वो भी आपको समझना पड़ेगा। सबसे जाने के बाद में, कंपनी में जाने के बाद में आपको पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि उनका जो स्टोर है ना
वो स्टोर आपको देखना पड़ेगा। आप यदि स्टोर देखते हो तब आपको पता चलेगा कि कंपनी सही मायने में अच्छा काम करती है या नहीं करती है, ये सब सारी चीजें। उसके बाद में मैंने आपको जैसे बताया कि निदानम परिवर्जे, हेतु को ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप बम्बई में रहते हो तो बम्बई के लोगों को आदत क्या होती है, या तो कहीं पर बहुत सारे जो बड़े बड़े सिटीज है, नॉट ओनली बॉम्बे, लेकिन जितने भी ये सिटीज है उसके अंदर दो प्रकार के हेतु आपको पक्का ध्यान में मिलेंगे आप यदि ढूंढते हो। दैट इज वन इज द सन्निकृष्ट हेतु, अनदर इज द विप्रकृष्ट हेतु। सन्निकृष्ट हेतु में क्या है, तो सन्निकृष्ट हेतु के अंदर हर एक को जो है कोई टाइम रहता नहीं है, विरुद्ध अन्न खाते रहता है, या एक तरफ पाव भाजी खाएगा, एक तरफ बड़ा पाव खाएगा, उसके दूसरे बाद में कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लेगा, कोल्ड ड्रिंक्स के बाद में और गर्म कॉफी भी पी लेगा। ऐसे सब गंदी गंदी चीजें सारे जो विरुद्ध अन्न, ये सब विरुद्ध अन्न का सेवन जो है बड़े बड़े सिटी में होता है। आपको उसको उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी पूरे मुंबई में सब दूर बारिश ही बारिश चल रही है। बारिश में यदि कोई भीगता है तो ये सन्निकृष्ट हेतु रहा। इसके बाद में पॉल्यूशन है, ये भी सन्निकृष्ट हेतु है। विप्रकृष्ट हेतु के अंदर क्या होगा, तो पहले से ही जो है हमारा पूरा जो एरिया है वो एरिया जो ह्यूमाइड एरिया है ना, वो सारे ह्यूमाइड एरिया के अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो काय करतोय खाली आता? फिर उसके बाद में आपको दूसरा ये ध्यान देना पड़ेगा कि हेरिडिटरी फैक्टर, गाडीसाठी पाठवून देतो। तो हेरिडिटरी फैक्टर के अंदर आपको एक बात मिलेगी कि अपर रेस्पिरेटरी ऊर्ध्वजंतुगत जितने भी विकार है सारों के अंदर, सारे बंबई बड़े बड़े सिटियों के अंदर लोग रात को 10 बजे के बाद में खाना खाते हैं। तो रात को 10 बजे के बाद में खाना खाना ही एक हेतु है। रात को सोते समय पानी पी के सोना। क्यों पी के सोना, तो भाई सुबह मुझे जल्दी उठना है, मुझे पेशाब आएंगी, इसलिए मैं रात को भरपूर पानी पीऊंगा। भरपूर पानी पीने के बाद में ये आदत बनती रहती है, जो आदत जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए आपको, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए आपका ये हेतु बन सकता है, जो धीरे धीरे विप्रकृष्ट हेतु में परिणित होता है। तो आपको सारे हेतु आपको ढूंढना पड़ेंगे। उसी तरह से पूरे बंबई में करीब करीब 70% लोग जो है या तो एसी में बैठते हैं, घर पे बैठते हैं, या तो एसी में अपने ऑफिस में दफ्तरों में काम करते हैं। इसलिए एसी का भी यदि उसमें कारणीभूत है, निदान है, तो उसको भी निदान परिवर्तन। लेकिन कई बार निदान परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता, तो उसमें क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया मित्रों कि जो है नारियल का तेल है, तिल्ली का तेल है, सरसों का तेल है, सादा सादा सिंपल विदाउट मेडिकेटेड तेल, ये खाली आप यूज करने के लिए, बार बार यूज करने के लिए बोलते हैं। तब धीरे धीरे उनकी भी जो है इम्यूनिटी खुद की बढ़ती रहेंगी, और जिसके द्वारा यह सब चीजें बंद हो जाएंगी कि व्याधि नहीं होगा। लेकिन ये आपको, आपका कर्तव्य बनता है हर वैद्य का कि क्या करना चाहिए और क्या, क्योंकि अन्य शास्त्रों के, वैद्यों के अनुसार, डॉक्टरों के ज्यादा आपको निदान का ज्ञान सबसे ज्यादा है। इसलिए आपको जो है हेतु ढूंढना बड़ा महत्व का है। ये सब चीजें हैं। और उसके बाद में यदि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, तब आप जाकर के पंचकर्म के लिए सलाह दे सकते हैं। साथ साथ में 64 पिप्पली है, तालिसादी चूर्ण है, कफज व्याधि है तो तालिसादी चूर्ण दो, वात पित्तज व्याधि है तो सीतोपलादी चूर्ण दो। सीतोपलादी में आप अपने खुद के मिश्रण भी बना सकते हो, जिसके अंदर यदि कुछ कार्डियक कास है, मतलब कार्डियक कफ है, उसमें भी तकलीफ होती है, तो अब उसमें आपको अलग से ड्रग, अर्जुन जैसे पुष्कर मूल, मृगशृंग भस्म, ऐसे ड्रग को भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा जो है वो अभ्रक भस्म है, जिसके अंदर अभी आप कोविड के अंदर जितने भी मित्रों, आपको मैं एक बड़े आनंद की बात यहाँ पे कहता हूँ कि कोविड में मैं 4.5 महीने से डे फर्स्ट से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एक भी दिन दवाखाना बंद नहीं है। हमारे घर के लोग सारे डर गए, अरे ये क्या आदमी है यार, ये तो सुनता ही नहीं है। तो सब पूरी दुनिया कह रही है कि आपको मास्क पहनना चाहिए, आपको सैनिटाइजेशन करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट आर द आयुर्वेदिक SOP so far as this COVID-19 is concerned? आप लिख लीजिए। 3 main procedures should be done in your clinic. One is put the 2 drops of the oil in both the nostrils, either the coconut oil or anutaila or sarshapataila, etc., etc. Every day when you enter in the clinic, enter in a hospital, you should put 2 drops of all these drugs
in your both nostrils, one thing. Secondly, you go for धूमपान, आप उसके बाद में धूमपान करो. और थर्ड, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये जो धूपन चल रहा है, ये कंटिन्यूएशन में धूपन मेरे क्लिनिक में जैसे मैं एंटर होता हूँ, पूरा एरिया धूपन से कवर रहता है. मैं कभी भी, अभी तक आप कभी भी स्टिंग ऑपरेशन कर लो मेरा, या पिछले 4.5 महीने का CCTV रिकॉर्ड देख लो, neither we are using the mask, nor we are using the sanitizing, nothing else, nor we are using the PPE kit, nor we are using the hand gloves even. और हम सभी को देख रहे हैं अभी पिछले 4, क्योंकि सब शुरुआत में तो कोई पेशेंट आ ही नहीं रहा था हमारे पास में, लेकिन पिछले 4 हफ्ते से 129 पेशेंट का डाटा आज मेरे पास में है कि जो मैंने खुद जांचे हुए हैं पेशेंट, कोविड पॉजिटिव पेशेंट. और ये सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है केवल 7 दिन में निगेटिव हो चुके हैं. जहां तक के वेंटिलेटर पर गए हुए जो जितने भी पेशेंट है उनके वहां से भी फोन आते थे. यह हमारी सही उपलब्धि है कि वो पेशेंट जो है उनको भी 4 ड्रग मैं आपको बता देता हूं, यह आप यूज करो, लेकिन ये ड्रग सही मायने में अच्छे है या नहीं, ये खुद को आपको परीक्षा करनी चाहिए. वो 4 ड्रग जो सिम्टोमेटिक है और पॉजिटिव है, ये सारे चीजें आपको मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ. एक तो धूम्रपान करने के लिए बोलना है, ये धूम्रपान के ड्रग्स के अंदर जो है बीबित है और वासा है, बीबित की वासा और घृत, इनसे बनाई हुई है सिगार. ये कोविड सिगार हमने उसको बताया, नाम दिया कि कोविड की सिगार. दूसरी बात क्या है, तो तालिसादी मिश्रणम के अंदर है अभ्रक भस्म, रस सिंदूर, मृगशुंग भस्म और गोदंती भस्म. यह इनका मिश्रण कभी कभार यदि आपको उसमें यदि कोई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है या न्यूमोनाइटिक कंडीशन है, यह ड्रग के साथ में थोड़ा पुष्कर आप डाल दीजिए और मुहुर्मुहुर चाटने के लिए दे दीजिए दवाई. मुहुर्मुहुर देंगे तब आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा. मैं कहता हूँ डियर फ्रेंड्स, आप सुन लीजिए, अभी भी सुनो, अभी भी समय नहीं गया है. ये चीजें सारी यूज करो और यूज करने के साथ साथ में आपको श्वास कुठार रस देना है, आप श्वास कुठार रस दे सकते हो. फिर उसके साथ में कई बार जो है समीर पन्ना का भी यूज करना पड़ता है, यदि वातज हो तो तब भी आप उसमें डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अभ्रक भस्म एंड द रस सिंधु आर हैविंग वंडरफुल एंड ग्रेट रिजल्ट so far as the COVID-19 symptomatic patients are concerned. 129 केसेस पूरे आज ठीक हो चुके हैं. हम सभी का PCR नंबर वगैरह सब नंबर्स यहाँ पर हम लिखते हैं और उनके फोन नंबर भी लिखते हैं ताकि किसी को इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, इसलिए सारे लोगों के फोन नंबर लिखते हैं. और मित्रों, ये COVID-19 के लिए डरने की मुझे तो लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है. क्यों? क्योंकि COVID-19 इज नथिंग बट ओनली भूताभिसंगज आगंतुज ज्वर. भूताभिसंगज क्यों है? तो उसके अंदर हेतु के अंदर यदि आप देखेंगे तो काम शोक भय क्रोधैर अभिषक्तस्य यो ज्वरः सो अभिसंग ज्वरत्नेयो यश्च भूताभिसंगज ज्वर. मित्रों, ये अभी अपने खाली ज्वर के ऊपर मैं बात कहूं तो 3 घंटा मुझे कम से कम लगेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में अभी, क्योंकि बहुत सी जरूरी की बात क्या है कि हम प्रैक्टिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं. कम से कम आप पुड़िया बना के रखो कि पुड़िया रहने के में उसके साथ में ज्वर है तो ज्वरग्न कषाय क्या है ये भी आप लिख लीजिए. मैं तो कहता हूं पूरे 33 साल के प्रैक्टिस का निचोड़ जो है मैं आपको दे रहा हूं, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखो. ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो. निम्ब पत्र चूर्ण, अमृता चूर्ण, फिर वासा चूर्ण और इसके साथ में सुदर्शन काड़े चिराज जिसको बोलते हैं वो सुदर्शन चूर्ण, इनका प्रयोग करो. यदि कफज व्याधि है, कफज ज्वर है, उसके साथ में आप कुटकी डाल सकते हो. यदि वातज है तो उसके साथ में आप और कोई दवाई जिसमें वात कम हो जाए और अभ्यंग करने के लिए कहना सबसे बड़ी बात. तो अभ्यंग सबसे बड़ा महत्व का कार्य करता है ना. तो ज्वरादौ लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्येतु पाचनम.
ज्वरांते भेषजम दद्यात् ज्वर मुक्ते विरजम। ये काढ़ा यदि आप देते हो तो काढ़ा क्या करता है, काढ़े के अंदर उष्ण तीक्ष्ण व्यवायु विकासी सारे गुण होने के कारण क्वाथ जो है तुरंत काम करता है। मैं आज क्वाथ नहीं दे रहा हूं, 33 साल से मेरे सारे रुग्ण क्वाथ के लिए आते हैं कि सर मेरे को बुखार आ चुका है, मेरे को काढ़ा दे दो, मेरे को तो 1 दिन में ठीक हो जाता है काढ़ा पिया। तो इसका काढ़ा दिन में 4 बार दो, 3 बार दो, पेशेंट के अनुसार, उसकी मात्रा जो है वय के अनुसार बदलो, सीजन के अनुसार थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हो। इस चेंज करने का जो सूत्र दिया है, जो चरक संहिता के अंदर दिया है, वह सूत्र आप आज जान लीजिए। मान लो गलती से आपके साथ में यदि कोई दुर्घटना घटती है और पेशेंट जो है मर जाता है, मान लो किसी कारणवश, और आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, तो चरकाचार्य ने इसके लिए बहुत अच्छा सूत्र चरक चिकित्सा अध्याय में ही कहा है। संसृष्टान सन्निपतितान बुद्ध्वा तरतमय ही समय ही ज्वरान दोष क्रमापेक्षी यथोक्तैर औषधैर जयेत। इतना फ्रीडम आपको दिया हुआ है। यह फ्रीडम से मैं दावे के साथ में कहता हूं, कोई भी जो वैद्य है उसको कहीं पर भी अपयश नहीं मिलने वाला है। संसृष्टान का मतलब है 2 दोष। इस पेपर में जैसे आप केस पेपर पे लिखेंगे सन्निपतितान बुद्ध्वा, 2 दोष है या 3 दोष है, इनको पहले जानना चाहिए। ये जानने के बाद बुद्ध्वा, त्वांत प्रत्यय है यहाँ पर, ये जानने के बाद में फिर उसमें कहा है कि ये खाली एक श्लोक के लिए डिस्कशन करने के लिए मुझे आधा घंटा चाहिए। तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, तरतमय ही समय ही, दोषों का तरतम भाव भी आपको समझना पड़ेगा। दोषों के तरतम भाव के साथ साथ में दोषों का भाव यदि समझ में आता है, तब अपने आप आपको आपकी बुद्धि खुल जाएगी कि मुझे चिकित्सा क्या। तो ज्वरान दोष क्रमापेक्षी, ज्वर डज नॉट मीन ओनली द फीवर, डियर फ्रेंड्स। ज्वर डज नॉट मीन ओनली द फीवर। ज्वर इज द सिनोनिम्स ऑफ व्याधि, ज्वर इज द सिनोनिम्स ऑफ डिसऑर्डर। इसीलिए ज्वर चिकित्सा सबसे पहले कहा। जिसको ज्वर जिंदगी में नहीं समझ में आया वो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, मैं दावे के साथ में कहता हूं, वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ज्वर इज द सिनोनिम्स ऑफ डिसऑर्डर। और सारों का सूत्र, द्वंद्व है, सान्निपातिक है, इन सारों का सूत्र, और सारे इमरजेंसी और सारे जितने भी वायरल डिसऑर्डर्स है, ये सारे वायरल डिसऑर्डर सान्निपातिक है। ये सान्निपातिक डिसऑर्डर क्यों है, इसके ऊपर हम कभी समय मिलेगा तब बात करेंगे। लेकिन यह सान्निपातिक जो 13 सान्निपातिक का है मित्रों, अभी दुनिया को खाली 25 वायरस पता है। आयुर्वेद में तो अनंत वायरस की, ये श्लोक के जरिए अनंत वायरस की गणना की है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि यू आर हैविंग ए वेरी गुड चांस टू डेवलप योरसेल्फ सम वायरसेस लाइक बावने वायरस, दशपुत्र वायरस, नरेंद्र वायरस, ये भी आपको चांस है। व्हाट इज द, ये नाम क्यों दिया है? कोई नाम जो है अलग से नहीं दिया है। इट इज द कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स, द कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स। यू मे गो फॉर द straightly viruses, Narendra virus, Gujarati virus, Patil virus, etc., etc. You are having a good chance to develop yourself some viruses. और ये वायरस, मैं तो ये कहता हूँ, ये कोविड-19 छोड़ दो, कोरोना वायरस छोड़ दो, आप अपने हिसाब से जो है वातोल्बण कफमध्य पित्तहीन सान्निपातिक ज्वर, ये वायरस बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको क्या पता है कि वातोल्बण कफमध्य क्या होता है, पित्तोल्बण कफमध्य क्या होता है, उनको कुछ पता नहीं है। अपने शास्त्र में कहता है कि संसृष्टान सन्निपतितान बुद्ध्वा, जानने के बाद में आपको यथोक्त ही औषधैर जयेत। व्हाट डज इट मीन्स? आखिरी का जो सूत्र है सबसे बढ़िया है कि यथोक्त ही, यथा उक्त ही, जो सूत्र कहा है उस सूत्र को हमने जाना है, और अकॉर्डिंगली वी हैव ट्रीटेड सच केसेस एंड हेंस द पेशेंट्स आर गेटिंग क्योर। यहां आप बता सकते हैं। इसलिए, और मान लो इस सूत्र से यदि लाभ नहीं मिलता है तो आपको बताने के लिए और चांस है कि भाई सुख साध्य था, कष्ट साध्य था, याप्य था, अनुपक्रम था। तो ये आप अनुपक्रम है कि नहीं है, ये आपको जानना पड़ेगा, बताने का अपने को क्या प्रॉब्लम है, यह पेशेंट को भी आपको बताना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको बताने के। देखो 3:30 हो गए, .330 हो चुका है।
बात करने के लिए बहुत सारा मेरे पास में नॉलेज, क्या बोलेंगे, जो मुझे है वो जो भगवान ने दिया है वो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जो है मैं सदैव तत्पर हूँ। और इसीलिए मैं आपके सामने ये सब चीजें रखी है, करने के लिए बहुत है। लेकिन कोविड के अंदर साथ साथ में आपको मैं सबसे अच्छा कार्य जो कर रहा है ताली शादी चूर्ण के साथ में भल्लातक मशी का प्रयोग करता हूँ। भल्लातक मशी क्यों करना है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सारे लोग भल्लातक को डरते हैं। भल्लातक क्या है, आप यदि कोविड को देखेंगे तो वात कफजत ज्वर, बराबर है। और वात कपहरणानाम किम, वात कपहरणानाम भल्लातक, वात कपहरणानाम भल्लातक। तो भल्लातक तैल को निकाल लो, आपका डर निकल गया कि इससे कोई उसको आपको व्याधि होंगी, इससे कोई एलर्जी होंगी, ये डर भी निकल जाएगा। उसके साथ में दूसरा क्या होगा, जब आप यदि वो भल्लातक तैल निकाल देते हो तो गमले के अंदर आपको मिलते हैं जले हुए भल्लातक। जो जले हुए भल्लातक जो है वो भल्लातक के अंदर सूक्ष्म व्यवायु विकासी हो जाता है उष्णता देने के कारण। एक दूसरी बात, वहां पर 3 महाभूतों का अधिक्य होता है। एक तो अग्नि महाभूत होता है, उसके साथ में आकाशवाह महाभूत हो जाता है जो को हल्का हो जाता है, और उसके के साथ में वायु महाभूत भी वहां पे प्रवेश करता है। जो मशी के अंदर, मशी जो है यह कफ को निर्हरण करने के लिए, कफ को कम करने के लिए, और निमोनाइटिक कंडीशन इमीडिएटली, दैट टू विद इन 3 और 4 डेज। अभी मेरे पास में एक्सरे है लेकिन अपने पास में समय नहीं है इतना सब बताने के। कभी और कभी मिलेगा मौका तो खाली कोविड के ऊपर भी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाली कोविड तो छोड़ो, लेकिन आने वाले जितने भी डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, सारों का ड्रग्स एक ही है मित्रों, ये ज्वरग्न कषाय, जिसको मैंने नाम दिया है, जो मैं फिर से आपको मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पे कि बार बार वो लोग बता रहे हैं कि ज्वरग्न कषाय के कंटेंट बताओ। तो ज्वरग्न कषाय के कंटेंट्स में जो है निम्ब पत्र, गुड़ुची, सुदर्शन चूर्ण, वासा और बिबितकी, ये सब आप उसमें अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। रुग्ण के उम्र के अनुसार आप मात्रा भी बदल सकते हो। ये काढ़ा 4 बार देने के बाद में मेरे कोई भी पेशेंट पूरे 33 इयर्स में, टाइफाइड के पेशेंट 4 दिन नहीं लगे हैं। और आखिरी का मैं आपको बता दूं कि ज्वरादौ लंघनम प्रोक्तम, लंघन का मतलब न केवलम उपवासम, चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुदा तपो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 10 प्रकार के जो लंघन है, 10 प्रकार के लंघनों का विचार हम वैद्यों ने करना चाहिए। और चिकुनगुनिया जो ज्वर है वो वातोल्बण कफमध्य पित्तहीन सान्निपातिक ज्वर है, जिसके अंदर हम लोग लंघन के रूप में व्यायाम चेति लंघनम, व्यायाम ये भी लंघन का प्रकार है। तो वहां पर जो है सर्व संधि ग्रह हो जाते हैं, वहां पर आपको व्यायाम करने का मतलब फिजियोथेरेपी आपको कंटिन्यूएशन में करना है। यह सब कंटिन्यूएशन में फिजियोथेरेपी करते हैं तो विद इन 3 डेज पेशेंट ठीक होता ही है। यह सबसे बड़ी महत्व की बात है मित्रों। और कभी मुझे मौका मिले हम कभी और बात करेंगे, लेकिन जो मुझे कहना था वो सारी चीजें बड़े संक्षिप्त रूप में मैंने कहने का यहाँ पर प्रयास किया है। और आखिरी में जाते जाते कई बार आपको ये पेशेंट के साथ में वोकल कॉर्ड नोडुल्स के पेशेंट आपको बहुत मिलेंगे। वोकल कॉर्ड के अंदर नोडुल्स सबसे बढ़िया ड्रग, बिना खर्चे का ड्रग जो पान टपरी पे मिलता है वो है गुंजा पत्र। गुंजा पत्र को चूसने को बोलो, 15 दिन में ये वोकल कॉर्ड नोडुल्स खत्म हो जाए, है ना। तो सबसे बड़ी महत्व की बात है, जाते जाते एक ही कहूंगा कि एक श्लोक आप याद करोगे, यह श्लोक हमेशा ध्यान रखोगे, संतुष्टान सन्निपतितान तरतमयी समय ज्वरान दोष क्रमापेक्षी यथोक्तई औषधैर्जय। जो आपके पास में ड्रग है वो सारे ड्रग्स यू कैन यूज, ये फ्रीडम आचार्य चरक ने आपको दे रखा है। नथिंग टू वरी, डोंट वरी। और जाते जाते मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे बड़े शांति से मुझे सुन लिया, इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जी सर, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा सा लेते हैं सर, विथ योर परमिशन। सर एक क्वेश्चन इसमें था सर, कैनुला जो पेट्रोल का पाइप अगर वापरते हैं तो उसका कैनुला प्लास्टिक का रहता है, ऐसा तो प्लास्टिक करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एंड प्रोडक्ट जो है ना, जो आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे ये लगी हुई है, तो आखिरी तक जाने नहीं तो कॉमन ठीक है ना,
आखिरी तक यदि पहुंचाएंगे तब वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। क्योंकि और इतना लंबा क्यों रखना है, क्योंकि ये बस्ती ये जो है धूम नेत्र है, ऐसा समझ लो, बात खत्म, वेरी सिंपल। इतना अंतर होना चाहिए आपके। थैंक यू सर। सर और एक क्वेश्चन था, धूपन सेवन काल, धूमपान सेवन काल। हाँ देखो, कफ का जो काल होता है उसी समय आपको धूमपान का सेवन करना है। सुबह सुबह उठते से ही नहाने के बाद, दोपहर, फिर दोपहर में, शाम को, शाम के समय में, और रात को सोते समय। आप 3 बार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चंस प्लीज पुट इन चैट बॉक्स। सर एक और ये दिया है कि अभ्यंतर तेलाची मात्रा। हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 30 to 40 ml रुग्ण के वय के अनुसार और प्रकृति के अनुसार आपको मात्रा निश्चित करना है। सो 20 से लेकर के 30-40 ml तक आप जो है अभ्यंतर पान करवा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। मेन एक क्वेश्चन और है कि ये जो महानारायण तेल और बाकी अभ्यंतर तेल के लिए जो बोला है, वो कंपनी के नाम लोग वापस पता है आपको, इन्होंने सुना नहीं शायद लेक्चर मेरा, है ना? ये आयुर्वेद सेवा संघ नासिक वाला जो है अभ्यंतर का महानारायण तेल बनाता है, उसी के साथ में सूरत की जो है आस्पा कंपनी है, वो भी अभ्यंतर तेल बनाती है। इसी का प्रयोग करना चाहिए। जो मुझे ज्ञात है वो 2 लोगों के मैं यूज करता हूँ, और वो अच्छा। और सबसे बड़ी बात, यदि आप खुद, यदि ये इसके जरिए तो मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, यदि आपका ग्रुप अच्छा है तो आप सब लोग जो है ग्रुप में एक एक ड्रग बनाओ और एक दूसरे को बांटो। सबसे बढ़िया बात। हम लोग तो करते हैं, हम 4 वैद्य है, जैसे वैद्य तपन वैद्य है, वैद्य हितेंद्र गोयल है, मैं हूँ, और एक हमारे वैद्य है जो नागपुर में। हम 4 वैद्य जो है, एक हमारे ड्रग्स हम बनाते हैं और हम एक दूसरे को बांट देते हैं। और उसमें हमारा क्लियर टाइटल है कि 20% आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बना हुआ है उसके ऊपर 20% आपको चार्ज करना है, बात खत्म। जिससे पैसे का आदान प्रदान करने की जरूरत नहीं पड़ती है और कुछ नहीं, और सही मायने में अच्छे ड्रग्स आपको मिलेंगे। ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। इसलिए ग्रुप बनाओ और ड्रग अपने अपने बनाओ। हमारा प्रॉफिट दूसरे को क्यों दे? सबसे बड़ी महत्व की बात यह है। बुद्धि हम लगाएंगे, पेशेंट को हम जांचेंगे, और मलाई साला तीसरा खाएगा। किसके बाप ने सिखाया भाई? राइट सर। एक क्वेश्चन और है सर, मेनी डॉक्टर्स ऑब्जेक्ट, बोलिए सर। हाँ सर, देख रहा हूँ सर, ऊपर गया है। हाँ, वोकल कॉर्ड के अंदर गुंजा पत्र सबसे बढ़िया काम करता है। यस राइट। बाकी सर व्हाट? और सबसे बढ़िया बताऊं कि टॉन्सिल्स, और जो जितने भी टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट आपके आते हैं, तो आप किसी को जो है ना धूपन करो रोज। वो धूपन यंत्र मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक धूपन यंत्र, जो धूपन यंत्र जो है कि पेटेंट हो चुका है, बहुत ही आसान धूपन यंत्र बना हुआ है। जो धूपन यंत्र हम सबको प्रोवाइड करते हैं। आपको 3 चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ जो इनोवेटिव है, वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। तो सब अभी जो बता रहा हूँ मैं कि आपको बस्ती देना है, मान लो, तो बस्ती आपके इसमें आपको संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आपके पास में यदि लैट्रिन की व्यवस्था है आपके ओपीडी लेवल में, तो ये बस्ती जो है नैनो नीरो जेल बना है। ये नैनो नीरो जेल में ये पेटेंट हो चुका है ऑलरेडी। ये नैनो नीरो जेल, ये 20 cc जेल है। ये 20 cc जेल में आप 1000 ml का आप नीरो बना सकते हो। इसमें कुछ करना है, जस्ट यू पोर द वाटर 1000 ml और 700 ml, जो जितना भी आपको चाहिए उतना आप ले सकते हो, और इमीडिएटली यू कैन एडमिनिस्टर द बस्ती इमीडिएटली। कई बार ऐसी पोजीशन आती है कि रुग्ण को पहले बस्ती देना पड़ता जरूरी रहता है ना? तो वात की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती। सर आवाज आपकी अनम्यूट हो गई सर। यह निरुवा जेल को पेटेंट मिल चुका है, जो 20 cc में काम करता है। ये खाली आपके पास में अवेलेबल है, तो उसको आप कन्वर्शन कर सकते हो। दूसरा है ये बस्ती, देखो वेस्ट में से बेस्ट बना है। ये जो है आपको
यह बस्ती के लिए जो ऑपरेटर है वो गुजराती ऑटो ऑपरेटर्स, ये वेरी सिंपल, वो खुद ही स्वयं खुद जो है रुग्ण अपना जो है बस्ती ले सकता है अपने अपने अपना खुद ही, जो सेल्फ ऑपरेटिंग है, ये सबसे बड़ी महत्व की बात है ना। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, खाली जो है पंप जो है आपको यहाँ पे दबाना है, लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेकर के अपने चेस्ट के तरफ इसको आप लेना है। तो आपको यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ बस्ती का। आप यदि ऐसे दबाओगे तो इसमें सबसे बड़ी महत्व की बात है कि ये जेल के अंदर जो है ना आपको 4 लेयर नहीं मिलते। जनरली हम जो बस्ती द्रव्य बनाते हैं उसके अंदर 4 लेयर मिलते हैं, है ना, ये बस्ती द्रव्य। तो 4 यहाँ पर हम यदि बस्ती ये जेल यदि डालते हैं तो ये होमोजेनस मिक्सचर है, जो कल्क है, क्वाथ है, तैल है और मधु है, लवण है, सारे इसमें है। जो उसमें डालने के बाद में आपको कहीं पर भी जो 4 लेयर जनरली हम जो बनाते हैं उसके अंदर आपकी आप बस्ती के फूटा द्रव्य के अंदर या उसके अंदर रिजर्वायर के अंदर यदि द्रव्य डालते हैं तो वहां पर आपको हमेशा 4 लेयर मिलेंगे। और जो तेल पहले जाना चाहिए वो तेल बाद में जाता है, वो तेल कई बार तो आधा तो जो उसी में रह जाता है ना। तो ये ऐसा है, ये धूपन यंत्र है, बहुत ही अच्छा धूपन यंत्र है। इसको ये सेल्फ ऑपरेटिंग भी है और कहीं पर भी धूपन कर सकते हैं। मुखगत धूपन भी करना है, टॉन्सिल्स के लिए बड़ा फायदेमंद। उसी के साथ में कर्ण धूपन करना है आपको तो कर्ण धूपन भी कर सकते हैं, योनि धूपन कर सकते हैं, अर्श धूपन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी महत्व की जो जितने भी डायबिटिक वुंड है वो डायबिटिक वुंड भी इससे जल्दी हील होते हैं। और बेड सोर्स के लिए पूरी दुनिया भटक रही इधर उधर, जो जल्दी ठीक नहीं होते। खाली ये धूपन करो आप, क्योंकि कोई भी पोजीशन में ये धूपन करने का मुख्य महत्व का यंत्र का निर्माण होने का मुख्य कारण कोई भी पोजीशन में हो पेशेंट, आपका पेशेंट जो है जल्दी तुरंत ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर यह जेल डाल दिया है और इसको हिलाना है केवल, यह आपका बस्ती द्रव्य तैयार हो गया। आपको यहाँ पर कोई भी आप देखेंगे कोई भी लेयर आपको मिलेंगे नहीं और सारे गुण जो है उसके अंदर आपको मिलेंगे। ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। इसलिए ये तीनों जो ड्रग्स है, तीनों जो चीजें है, ये पैटर्न आप भी खुद पैटर्न आप होल्डर बन सकते हो। लेकिन ये सौभाग्य रहा मेरा कि अपने पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला पेटेंट लेने वाला मैं और 3 पेटेंट लेने वाला भी मैं। इसलिए यह एक भगवान धन्वंतरी की कृपा होंगी जो जिसके कारण, क्योंकि हमें लगन से काम करना पड़ेगा। लगन से काम करेंगे तब ही जा करके हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। चिकित्सा नास्ति निष्फला, अभ्यास अपि नास्ति निष्फला। मैं तो ये कहूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों GP2 सुपर पूछ रहे कोई तो सर का फोन नंबर क्या है, तो मेरा फोन नंबर जिसको लिखना है तो आप लिख लीजिए 9423187688 9423187688। चैट बॉक्स में नंबर दे दिया है, प्लीज नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों और बहुत बहुत धन्यवाद भावने सर, जो आपने मुझे यहाँ पर कुछ बातें करने के लिए मौका मिला। और कभी कभी मौका मिले तो बहुत सारी चीजें जो मुझे पता है वो सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, कभी भी आप याद करो सर। आपकी हमेशा थैंक यू सो मच सर। आपके लिए हमेशा आपके लिए आपकी राह देखते ही रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, मुंबई डिवीजन से जो हमने GP2 सुपर GP ये जो सीरीज चालू किया है, मुझे लगता है कि आज GP2 सुपर GP का फार्मूला सर ने मंत्र वगैरह, गनशॉट ट्रीटमेंट, वेस्ट से बेस्ट, ये सब कुछ सर ने आज दिया है। और हम लगातार ऐसी कोशिश हम करते रहेंगे इस सीरीज के दरम्यान। और सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। गुजराती सर थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिविजनल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वप्निल सिरसाट सर से, प्लीज गिव अ वोट ऑफ थैंक्स।
सर नमस्कार. मी डिव्हिजनल सेक्रेटरी डॉक्टर स्वप्नील. मी गुजराती सरांचे सर्वप्रथम आभार मानेल आणि आमच्या जेवढे श्रोते होते आजच्या मीटिंगसाठी, GP2 सुपर GP नाही, याच्यात अशी सिरीज चालली तर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे 100% सुपर कन्सल्टंट बनू शकतो सर आपण या लेक्चर सिरीज मधनं. आणि सरांचं अतिशय सुंदर असं लेक्चर झालं सर. आणि काळाची साथ रोगात जगावर ओढवलेलं मोठं संकट करोनाचं, त्यासाठी खूपच उपयुक्त असं आपला आजचा टॉपिक होता सर. आपल्या मार्गदर्शनाची 100% प्रत्येक जीपीला 100% फायदा होणार आहे सर. आणि आपल्या या GP2 सुपर GP मध्ये सहभाग नोंदवलेल्या सर्व आपल्या स्नातकांचा मी मनपूर्वक धन्यवाद. म्हणजे 300च्या वर स्नातक जॉईन झालेले होते सर आज लेक्चर सिरीजला. म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात पहिलीच मोठी सिरीज असं म्हणता येईल सर. आणि इथून पुढे या सिरीज चालू राहतील. तसंच माझ्या डिव्हिजनलच्या टीम तसेच आमचे MCM मेंबर सर डॉक्टर भावनेजी, डॉक्टर दापुते सर आणि पूर्ण डिव्हिजनची टीम यांचे मी पूर्ण मनपूर्वक आभार मानतो आणि सर्वांचे धन्यवाद व्यक्त करतो. थँक्यू सर. थँक्यू स्वप्नील सर. भावने सर, मीटिंग कन्क्लूड करूया. हो सर, चालेल. Gujarati sir, thank you so much on behalf of Mumbai division and all participants. Thank you friends. फीडबॅक फॉर्म देतो म्हटले होते ना, फीडबॅक फॉर्म आपण देऊया ते. तो तुम्हाला सिरीजच्या शेवटी आपण ते सगळ्याच देणार आहे. तुम्ही ग्रुप मध्ये जॉईन असताना जर नसेल तर तुम्ही ग्रुप जॉईन करा. आपण सिरीज संपल्यानंतर सर्टिफिकेशन वगैरे सगळं देऊ. गुगल फॉर्म तुम्हाला सबमिट करण्यात येईल, तो तुम्हाला भरायचा आहे. ग्रुप कुठे मिळेल? मी आता माझा फोन नंबर आणि ते टाकला, नांदेड वरून आहे, डॉक्टर सुनीता वैजवाडे. ठीक आहे, आपल्याला ऍड करण्यात येईल मॅडम ग्रुप मध्ये. थँक्यू. ओके मॅडम, थँक्यू एव्हरीवन. बाय, सी यू नेक्स्ट. थँक्यू सर. आम्हालाही ऍड करा ग्रुप मध्ये, आम्ही मुंबईवरून आहोत. ओके सर, चालेल. डॉक्टर डॉक्टर सर मला पण ऍड करा, मी नाशिकवरून आहे. ओके. तुम्हाला कॉन्टॅक्ट नंबर जो दिलेत ना त्याच्यावर तुमचं हे पाठवा. हा, कॉन्टॅक्ट नंबर कॉन्टॅक्ट नंबर शेअर करतो परत वाटल्यास. नाही सर, त्यांनी मेसेज केलाय ना, मेसेज मध्ये ते ऑलरेडी कॉन्टॅक्ट नंबर आहेत. हा, त्यापैकी कुठलाही कॉन्टॅक्ट वर तुम्ही जर सेंड केलं तर तुम्हाला ग्रुप मध्ये ऍड हे पाठवले बघा, त्यातले नंबर हे करा. तुम्ही तुमचं नाव पाठवा, आम्ही ऍड करू त्याच्यामध्ये. ओके, थँक्यू एव्हरीवन. बाय बाय.